Hello students, today I am going to start the chapter The Necklace written by Guy de Maupassant, which is from your book Footprint Without Feet. So this chapter The Necklace is a story of a middle class lady named Matilda Loisel. So in this chapter you will see three main characters, Matilda Loisel, M. Loisel and Madame Forrester. So Matilda Loisel, she is a pretty woman, young woman who is married to a clerk. She is dissatisfied with what she has. She is always lost in her dream of wealth and pleasure. M. Loisel, he is the husband of Matilda and is an ordinary clerk. He always tries to please his wife as he is a caring man. And Madame Forrester, she is a good friend of Matilda. She is helpful and considerate. She lends Matilda a necklace that leads to her ruin. So इस चैप्टर में देखेंगे कि मैडम फॉरेस्टर ने अपनी फ्रेंड मैटिल्डा को एक नेकलेस दिया था पार्टी में पहनने के लिए, जो कि खो जाता है और मैटिल्डा को लगता है कि वो नेकलेस बहुत ही महंगा डायमंड नेकलेस है और उसको वापस करने के लिए उसे लोन लेना पड़ता है, अपना जायदाद जो है ज़मीन बेचना पड़ता है, जिसके कारण मीन्स ये जो नेकलेस के कारण उसका सारा जो लाइफ है वो बर्बाद हो जाता है उस लोन को चुकाने में. सो लेट्स सी द चैप्टर. द नेकलेस इज़ अ स्टोरी ऑफ अ मिडिल क्लास lady named Matilda Loisel. She was born in a poor family and was married to a clerk named M. Loisel. Matilda was a very pretty young lady, but she was dissatisfied with the poverty of her family. She wanted to have the luxuries in her life. She hated her own humble surroundings and spent her time dreaming about a fancy and luxurious life. She was very pretty and charming, but had the bad luck to be born into a family of clerk and married to another clerk. मीन्स वो बहुत ही सुंदर थी, लेकिन उसका बैड लक था कि वो गरीब क्लर्क के फैमिली में जन्मी और जब उसकी शादी भी होती है तो दूसरे क्लर्क के साथ, जो कि जिनका नाम था एम लॉयसल. हर हस्बैंड वर्कड एज अ क्लर्क इन द ऑफिस ऑफ द बोर्ड ऑफ एजुकेशन. सो let's start the chapter. A lady, Matilda Loisel, lived in a flat with her husband. He worked as a clerk for the Ministry of Education. They were not able to live a luxurious life. However, they were not poor, merely simple. However, Matilda's desire was to be rich. She felt irritated, disappointed, and sad of not having a large house. Moreover, she desired to have good dresses, lots of jewelry which made her sad. तो वो हमेशा चाहती थी कि वो बहुत अमीर रहे, बड़े घर रहे, बहुत सारी सुंदर सुंदर ड्रेसेस हो, ज्वेलरी हो. One day, her husband brings her an invitation to a fancy party. It was an invitation to the ball. Ball means party. He thought his wife would be very excited about seeing the invitation later. तो उसके हस्बैंड को लगा कि उसकी वाइफ बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएगी इनविटेशन देख के. However, his wife, instead of being happy, threw away the invitation letter and started crying. लेकिन बजाय खुशी के उसकी वाइफ जो है और कंप्लेन करने लगती है, रोने लगती है. She complained about not having a pretty dress to wear on such a great occasion. तो कारण क्या था? उसके पास अच्छे ड्रेस नहीं थे उस ग्रेट ओकेशन में पहनने के लिए. शी वॉन्टेड टू सीक एडमिरेशन फॉर एवरी वन. ऑल्सो शी वॉन्टेड टू बी अ सक्सेस एट द पार्टी. अ सक्सेस एट द पार्टी मीन्स उस पार्टी में वो चाहती थी, सुंदर तो थी ही वो चाहती थी कि सभी को एक नज़र उस पर पड़ी, सबको इसकी तारीफ़ करे. हर जेंटल हस्बैंड गेव हर 400 francs टू बाई अ प्रिटी ड्रेस. ही हैड सेव द मनी टू बाई अ राइफल. तो उसका हस्बैंड जब देखता है कि उसके पास सुंदर ड्रेस नहीं है तो वो अपने पैसे जो बचाए थे
400 फ्रांस क्या खरीदने के लिए? अ राइफल। अपनी वाइफ को दे देता है कि चाहो तुम सुंदर सा ड्रेस खरीद लो। द वीक ऑफ द पार्टी अप्रोच्ड. हिज वाइफ seemed to be anxious again. She was upset as she felt that she didn't have any jewelry to wear with the dress. अब पार्टी का वीक आ गया, फिर उसकी वाइफ परेशान है, अपसेट है, दुखी है। अब क्यों है? अब उसके पास ज्वेलरी नहीं है। Her husband suggests her to ask the same from her friend Forrester. Matilda went to her house and borrowed a sparkling necklace. तो उसके हस्बैंड ने उसे सजेशन दिया कि तुम क्यों नहीं अपनी फ्रेंड से के पास जाती हो और ज्वेलरी बोरो कर लो। तो वो जाती है और अपनी फ्रेंड से रिक्वेस्ट करती है कि अगर तुम्हारे पास कोई अच्छा सा ज्वेलरी हो, नेकलेस हो तो तुम दो। वो सारा अपना बॉक्सेस खोल के दिखा देती है, तुम्हें जो पसंद है ले लो। बहुत पसंद करने के बाद भी उसे पसंद नहीं आता है। फिर लास्ट में वो एक नेकलेस देखती है तो उसे बहुत पसंद आ जाता है। वो बोली कि मुझे और कुछ नहीं, मुझे बस वो नेकलेस दे दो। उसकी फ्रेंड बोलती है ओके यू कैन टेक नाउ। वो खुशी खुशी घर चली जाती है और मैटिल्डा अलॉन्ग विथ हर हस्बैंड enjoyed a lot at the party. She was successful in seeking everyone attention to her. और जो वो चाहती थी कि सभी को एक अटेंशन, सभी को एक ध्यान उसके तरफ रहे, सभी कोई चाहते थे, खास करके जो मेन थे वहाँ पे वो देख के चाहते थे कि कौन है वो लोग बात करना चाहते थे। देन दे हेडेड फ्रॉम होम ड्यूरिंग द ऑड्स आवर इन द मॉर्निंग. और फिर पार्टी देर रात तक चली. उसका हस्बैंड जो है नींद भी आ रहा था एक सैलून में, मीन्स वहीं पार्टी जहाँ हो रही थी एक रूम में जाके वो आधा सोया हुआ था. फिर सुबह के 4 बजे ये लोग पार्टी से निकलते हैं. एट दैट टाइम हर हस्बैंड सेड डैड वेट, मैं कैब बुलाता हूँ. लेकिन वो बहुत हड़बड़ाई हुई होती है क्योंकि फिर उसको क्या लगता था कि सभी जो लेडीज़ हैं, रिच लेडीज़ हैं, वो लोग अब ठंड लग रही है तो ओढ़ने के लिए फ़र के हैं शॉल, बहुत सुंदर सुंदर शॉल्स उनके पास हैं. तो उन्हें लग रहा है कि उसके हस्बैंड ने उसे जो उड़ा दिया था, उसके लग रहा था कि सब कोई उसको गरीब समझेंगे. तो वहाँ से वो जल्दी निकलना चाहती थी. कैब का भी इंतज़ार नहीं की और नीचे उतर गई जाने के लिए. और आफ्टर दैट दे एट लास्ट दे फाउंड अ कैब. Now on reaching home, Matilda was surprised on not finding a necklace around her neck. Now घर पहुंचने के बाद एक बार फिर से वो मिरर के पास जाती है, मीन्स खोलने से पहले कि मैं कैसी लग रही हूँ देखने के लिए. तो वो देखती है कि नेकलेस उसके गले में नहीं है. She was surprised. They both felt that it might have fallen down in the cab, which they took to reach home. Also, he searched on the street they have come through. Moreover, he approached the police, gave advertisement, but all in vain. मीन्स बहुत वो लोगों ने प्रयास किया, पुलिस को भी दिया, सब कुछ गिव एडवर्टीजमेंट, लेकिन सारा चीज़ बेकार गया. Her husband asked her to write a letter to her friend. She wrote that she had broken and she has given it for repair. Meanwhile, they were successful in searching for a similar necklace. नाउ उसने अपने फ्रेंड को लिख दिया कि तुम्हारा नेकलेस जो है वो थोड़ा टूट गया है तो अभी समय लगेगा बनने में. और इसी बीच वो लोग क्या किए, वो लोग सक्सेसफुल हो गए ढूंढने में एक उसी तरह का नेकलेस. हावेवर इट कॉस्ट 36,000 francs. His husband has inherited 18,000 francs from his father. अब इतना पैसा के लिए उसके हस्बैंड को अपने फादर से लेना पड़ा 18,000. हावेवर दे हैड टू बोरो द रिमेनिंग मनी. अब और मनी कहाँ से आएगा, बिकॉज ये तो था 36,000, अभी तो आया है बस 18,000 फ्रेंड्स ही. तो रिमेनिंग उन लोगों को बोरो करना पड़ा. दे मैनेज टू बाई द नेकलेस थ्रू इनहेरिटेड एंड बोरोड मनी, बट इट टुक देम अ पीरियड ऑफ 10 years टू रिपे द बोरोड अमाउंट. लेकिन इस बोरोड मनी को वापस करने, रिपे करने के लिए 10 years लग गए. अब देखो, इन दीज ईयर्स देयर लाइफ्स हैव ड्रास्टिकली चेंज. दे मूव टू अ स्मॉल अपार्टमेंट. मीन्स अब वो लोग को और छोटे अपार्टमेंट में जाने पड़े. क्लीन एंड कुक्ड हरसेल्फ, खुद से खाना बनाना पड़ा, सफाई करना पड़ा. मोरोवर हर वाइफ डिड मल्टीपल जॉब्स टू रिपे द अमाउंट. हस्बैंड को भी मल्टीपल जॉब करने पड़े ताकि जल्द से जल्द वो पैसे रिपे कर दिया जाए.
Also, she looked like a strong woman of a poor household. She looked very aged. मीन्स काम करते करते और सोच के कि हाउ टू रिपे द मनी, वो एकदम बहुत ही बूढ़ी दिखने लगी थी. One day she saw her friend Forrester on the street. She decided to tell her the truth. वो डिसाइड की कि आज मैं बता देती हूँ कि वो टूटा नहीं था, खो गया था, और every truth she wanted to tell. The latter was stunned by the rough appearance of the farmer. अब उसकी फ्रेंड फॉरेस्टर जब देखती है उसको तो एकदम दंग रह जाती है कि माय गॉड, कैसी दिख रही है, कितनी सुंदर थी मैटिल्डा, क्या हो गया, ऐसा दिख रही है एकदम एज्ड वुमेन के जैसा. तो फिर उन्होंने सारा स्टोरी बताया कि नेकलेस जो तुम्हारा खो गया था वो टूटा नहीं था, फिर हम लोगों ने ख़रीदा वो, और फिर उसका रिपे करने में बहुत मेहनत करना पड़ा. तो जब ये ट्रूथ जानती है उसकी फ्रेंड फॉरेस्टर, तो वो दंग रह जाती है. मोरोवर, ऑन लर्निंग द ट्रूथ ऑफ द नेकलेस, शी टोल्ड डैट कि माई गॉड, तुम्हें बताना चाहिए था, इट वॉज अ फेक वन, वो नकली था. द वर्थ ऑफ द सेम वॉज नो मोर देन 500 फ्रांस, बल्कि वो कॉस्ट भी बताती है कि 500 फ्रांस से ज़्यादा की नहीं था. तो द कंक्लूजन ऑफ द नेकलेस इज वॉट? द स्टोरी टेल्स अस दैट वन शुड नॉट कार्व फॉर लग्जरीज. One must be satisfied and content with what one has. Desires led to unhappiness. Moreover, we should never hide the truth. So, I think you people have understood the story. If you have any problem, we will again discuss in the next online class. Till then,